Bismillahirrahmanirrahim. I, Mohammad Snaulakiani, and my group partner Gulfaraz, we had made a project of density-based traffic signal controller under the supervision of Mr. Rehan Tariq. So before going to the working of our system, let's first describe the structure of our model. Here, in this model, each road contains three IR sensors that will detect the road density. We categorize the road density into three parts. If one sensor detects the vehicle, then the road density is low and 6-second time will be allowed to that side. Likewise, if two sensors detects the vehicle, then the road density is medium and 9-second time will be allowed to that side. If all the sensor detects the vehicle, then the road density become high and 12-second time will be allowed to those sides. And microcontroller is responsible to get the road density record and send it to the web server by using Wi-Fi module. We use vMOS ESP8266 Wi-Fi module that will send record to the database. We also use IR receiver that will be used in case of emergency in order to turn the emergency side signal on. When traffic signals are operating in density mode, it will allot a signal time according to their road density. And the traffic controller will also be able to tackle emergency vehicle in case of any emergency. You can see that our system allot a time to every signal according to their road density, and the cycle will always flow in the same direction. The density of road A is high so that the system allot a 12 second for road A. If emergency situation occur, then the cycle of flow becomes shuffled to that side, and after tackling it, it will continue its cycle. Now you can see that the cycle shifted to road D due to emergency and allots 5 seconds that is predefined for the emergency case. The cycle came from road A, so after tackling the emergency, it will return back to road B so that it will continue its cycle. I am using the mobile siren for emergency vehicle and changing the signals from IR receiver by using IR mode. And also the traffic controller will be able to view this whole record from monitoring screen that is attached above right corner in this video, where density of road and signal flow is clearly visible. Here is the demo of our system work that you can clearly view. When ट्रैफिक कंट्रोलर डेंसिटी मोड में सिग्नल्स को ऑपरेट कर रहा होगा तो उसे टेबुलर फॉर्म में भी रिकॉर्ड शो हो रहा होगा और विजुलाइज फॉर्म में भी उसको ग्राफिकली रिकॉर्ड शो हो रहा होगा। तो पहले हम टेबुलर फॉर्म में उस रिकॉर्ड को देख लेते हैं कि कैसे शो हो रहा है रिकॉर्ड। हमारा फ़्लो जो है ट्रैफिक सिग्नल्स का वो एक ही फ़्लो में फ़्लो कर रहा होगा। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही फ़्लो करता रहेगा और उसका सारा रिकॉर्ड जो है हमें टेबुलर फॉर्म में ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, जहाँ से ट्रैफिक कंट्रोलर अपने रिकॉर्ड को हमारे इस रिकॉर्ड को मॉनिटर कर रहा होगा।
अब हम देखें तो रो डे अभी ओपन हुई हुई है और हमारे इस टेबल में भी रोड डे इज़ एक्टिव नाउ लिखा आ रहा है और रोड की जो डेंसिटीज़ हैं वो सारी रोड की डेंसिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली लिखी आ रही हैं। हमारे पास बी रोड की डेंसिटी मीडियम है तो मीडियम आ रही है। सी रोड की डेंसिटी हमारे पास नो हुई थी, अभी हाई लो हो गई है। इसी तरह हमारे पास डी रोड की डेंसिटी हाई है और ए रोड की डेंसिटी जो है हाई हो गई है अभी। पहले ये भी लो थी, लो से नो हुई फिर हाई हो गई है। हमारे पास अभी सिग्नल जो है डी सिग्नल हमारे पास ऑन है तो यहाँ पे हमारे पास टेबल में हमें क्लियरली शो हो रहा है कि डी सिग्नल इज़ एक्टिव नाउ और रोड की डेंसिटी हमें टेबुलर फॉर्म में शो हो रही है यहाँ पे। अब हमारा माइक्रो कंट्रोलर कर रहा क्या है, वो देखता है कि कितने सेंसर डिटेक्ट कर रहे हैं हमारे डाटा को। अगर तो एक सेंसर डिटेक्ट कर रहा हो तो इसकी लोड कैटेगराइज किया हुआ है। अगर एक सेंसर डिटेक्ट कर रहा होगा तो उसकी डेंसिटी लो होगी, दो डिटेक्ट कर रहे होंगे तो उसकी डेंसिटी मीडियम होगी, अगर तीन सेंसर डिटेक्ट कर रहे हैं व्हीकल को तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। इसी तरह वो 6, 9 और 12 सेकेंड का टाइम जो है अलॉट कर रहा होगा। अब रोड सी पे उसने 9 सेकेंड का टाइम लॉट किया बिकॉज यहाँ पे मीडियम डेंसिटी है। इसी तरह अब वो रोड डी पे गया तो उसने 6 सेकेंड का टाइम अलॉट किया है बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक सेंसर जो है डिटेक्ट कर रहा है व्हीकल को। इसी तरह अब रोड ए के अंदर वो हाई डेंसिटी है, तीनों सेंसर जो हैं डिटेक्ट कर रहे हैं व्हीकल को, इसलिए उसने क्या किया 12 सेकेंड का टाइम अलॉट किया था। इसी तरह रोड बी में भी अभी हमारे पास तीनों सेंसर जो है व्हीकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसको 12 सेकेंड का टाइम अलॉट करेगा। और ये रिकॉर्ड जो हमें शो हो रहा है इसमें कोई डिले नहीं आ रहा। पहले डिले आ रहा था फिर काफ़ी मतलब स्ट्रगल के बाद ये डिले ख़त्म किया। अगर तो हम यहाँ से सारे ट्रैफिक को उठा लेंगे, कोई भी अगर ट्रैफिक व्हीकल नहीं आ रहा तो क्या करेगा सिग्नल, क्या करेगा उसको ज़ीरो टाइम अलॉट करेगा। वो सिग्नल को अभी बी को ज़ीरो टाइम अलॉट किया, डी को ज़ीरो टाइम अलॉट किया, सी को ज़ीरो टाइम अलॉट किया। अब जब देखेगा हमारा कंट्रोलर कि कोई भी ट्रैफिक नहीं शो हो रही किसी भी लाइन में भी तो किसी सिग्नल को टाइम अलॉट नहीं करेगा और येलो लाइट ब्लिंक एंड ऑफ होना शुरू हो। When traffic signals are operating in fixed mode, then the microcontroller will turn the signals on for 5 seconds on each side of the intersect. You can see that no vehicle is on side B, but the signal was green. In fixed mode, the traffic microcontroller does not see the road density. It operates in fixed logic that is implemented behind it, irrespective of the density-based logic. So this is allotting 5 seconds for each line that is clearly visible in video. First, admin will log into system through his valid CNIC and password. If he insert the wrong information, then error message will be occur. And admin again insert the valid information in order to go to dashboard. Here in dashboard, admin will be able to monitor traffic signal, insert traffic employee record and will view the status of emergency location and will register them. Now first we go to the employee record where traffic controller record is clearly visible and this whole site is completely responsive. You can see in the video. Here in this page, admin can search the traffic controller record and also can view them. Admin can add the new traffic controller by inserting his valid information. Admin will insert the name, his address, gender, designation, CNIC and password. If he inserts the wrong value in any field, then the error alert message will occur.
So he have to insert the correct information in order to register the traffic controller. You can see the insert record it displays on screen. After that, admin can update the information of traffic controller through date button. No, I'm changing the dash field. I'm changing it to Rawalpindi. After changing, I will update it. Now you can see the dash become changed to Rawalpindi. Admin can also delete the record. You can see I am delete the demo record. Each and everything in this page is working perfectly. You can see we can go to the next page or show the entities from 10 to 25 or 50 or any other else. No, I go to the emergency vehicle where all of the emergency vehicle record is shown, and some of them has registered and some has not. Admin can confirm the emergency by verifying so that he can log into their portal. Admin can also search it here, and also he can add the record of new emergency vehicle by inserting correct information that is related to the traffic vehicle driver. If he insert any field wrong, then the error message will be occur. After inserting the valid information, he will successfully insert the record of emergency vehicle. Where here screen is shown the record of emergency vehicle that I register. Admin can also delete the record of the emergency vehicle. Now you see I deleted the record. Now I'm going to the dashboard. The dashboard is also completely responsive. Each and everything is working fine. Now I'm log out from admin portal and insert traffic controller record, valid traffic controller record in order to log in. After inserting the traffic controller record, he will successfully go to the dashboard page. Here in dashboard page, traffic controller will be able to monitor traffic and will view the emergency location status and will register them. After entering into monitoring room, traffic controller will monitor the road record and signal flow through the screen. यहाँ पे सारा रिकॉर्ड उसको शो हो रहा होगा ट्रैफिक रिलेटेड. In case of any emergency, the traffic controller will tackle it by viewing his location. यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर को सारा रिकॉर्ड शो हो रहा होगा जो भी इमरजेंसी अक्कर हुई है. उसकी लोकेशन को देख के ट्रैफिक कंट्रोलर सिग्नल्स को ट्रिगर करेगा जिस भी सिग्नल को उसने ओपन करना है. आफ्टर टैकलिंग द इमरजेंसी व्हीकल ही विल डिलीट हिज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद इमरजेंसी व्हीकल का रिकॉर्ड यहाँ से गायब हो जाएगा हमारे मैप से. मॉनिटरिंग रूम पे हमारे पास सारा रिकॉर्ड रोड का शो हो रहा होगा. अब यहाँ पे ए रोड इज़ अ हाई, बी इसी तरह लो है, सी लो है, डी जो है मीडियम है. और ट्रैफिक की जो रोड विजुअली भी हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है. और इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोलर टेबुलर फॉर्म में भी रोड का डाटा को देख सकेगा कि रोड इस टाइम रोड की क्या सिचुएशन है. ट्रैफिक कंट्रोलर कंट्रोल रूम से सिग्नल्स को स्टार्ट भी कर सकेगा, स्टॉप कर सकेगा, या फिर उसकी डेंसिटी मोड को चेंज कर सकेगा फ्रॉम फिक्स टू डेंसिटी और वाइस वर्सा. और फिक्स मोड में हमारे पास रोड का रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा होगा. Traffic controller will also register the emergency vehicle record, or by verifying it
एंड इट कैन आल्सो टैकल द इमरजेंसी। और इसके अंदर ऑप्शन होगा कि वो सैटेलाइट व्यू भी कर सकता है मैप का, और दूसरा व्यू भी कर सकता है मैप का। उसके बाद मॉनिटरिंग रूम, और ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है इन ईच प्रोस्पेक्टिव। सारा जो इसमें आइकन्स एक्सेट्रा सब कुछ जो है पेज के अकॉर्डिंगली मूव हो रहे हो। गाड़ियों को अगर शो कराना होगा तो गाड़ियाँ भी जितनी भी हैं, अगर डेंसिटी मोड में मैं जाऊँ तो गाड़ियों का भी जो रिकॉर्ड है वो भी हमें विजुअलाइज हो रहा है। ये भी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, अगर आप पेज को शफल करें या जिस साइड मर्जी ले जाएं। इसके बाद ये कंप्लीट सर्विसेज हैं, जो मेन सर्विसेज थी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस कॉलम के अंदर हमें शो हो रही हैं। इसके बाद अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोलर एडमिन से कांटेक्ट करना चाहता है तो इस पेज के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकेगा बाय ईमेलिंग अस। अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करके उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी है वो एंटर करेगा और सेंड कर देगा। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन सेंड होने का मैसेज रिसीव हो जाएगा। और इसका जो भी रिकॉर्ड है हमें ईमेल आ जाएगी, उसने जो भी हमें मैसेज किया होगा एडमिन को। इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर जो है मॉनिटरिंग रूम में जाके अपडेट भी कर सकेगा अपनी प्रोफाइल को। अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए उसको वैलिड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये पेज जो है कम्प्लीटली जो है ना फॉर्म वैलिडेशन इसके पीछे इम्प्लीमेंट हुई हुई है। अगर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इंसर्ट करता है तो उसको एरर मैसेज एट अ टाइम भी शो हो रहा होगा, और अगर वो फॉर्म को क्लिक भी करता है तो वो फॉर्म हमारा रजिस्टर नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इंसर्ट नहीं कर लेता। I use regex behind this form validation। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है योर चाइल्ड हुड फर्स्ट नेम, ये फॉरगेट पासवर्ड के लिए है। जब यूज़र अपना फॉरगेट करेगा पासवर्ड तो उसमें ये हम उसका आंसर लिखेगा तो उसके थ्रू वो फॉरगेट कर सकेगा पासवर्ड को। अब यूज़र ने अपडेट की प्रोफाइल तो उसकी अपडेट न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद लॉग आउट कर लेते हैं, और ये ईमेल हमें शो हो रही है कि जो उस यूज़र ने ईमेल हमें भेजी थी उसके सब्जेक्ट और नेम के साथ। अब हम यूज़र की अगर तो अब प्रोफाइल अपडेट हुई तो वो क्या कर सकेगा अपने रिकॉर्ड को, अगर उसको पासवर्ड भूल जाता है तो वो उसको फॉरगेट भी कर सकेगा बाय एंटरिंग हिज CNIC एंड जो आंसर उसने अपडेट प्रोफाइल के अंदर डाला था सीक्रेट आंसर। यहाँ से मैं फाइंड करके उसका CNIC कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पहले तो अगर तो वो रॉन्ग आंसर इंसर्ट करता है तो उसको मैसेज आ जाएगा कि योर आंसर इज़ रॉन्ग। करेक्ट आंसर इंसर्ट करने के बाद अगर वो फॉरगेट करता है तो उसका पासवर्ड सक्सेसफुली फॉरगेट हो जाएगा, और उसका जो न्यू पासवर्ड है वो जो उसने इंसर्ट किया वो होगा। दिस इज़ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर emergency vehicle driver where from he will send his location in emergency situation. If his vehicle is not registered, then he will send a registration request to the web server. User must have to insert valid information in order to send the registration request, because form validation is implemented behind this form. यहाँ पे जो हमारा जो यूज़र है वो अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, अगर वो कुछ भी गलती करता है, मिस्टेक करता है फॉर्म की किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड के साथ हमारे पास एरर आ जाएगा कि आपने ये वाली मिस्टेक की हुई है। लेट्स सपोज अगर उसने अपना CNIC गलत लिखा हुआ है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिखा हुआ है तो उस फील्ड के साथ एरर आ जाएगा कि आपका ये वाली फील्ड जो है रॉन्ग है। तो वो यूज़र जो है उसको करेक्टली फिल करेगा, देन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद यूज़र हैव टू वेट फॉर confirmation. After confirmation of his vehicle, then he will be able to log into our dashboard. Now I am
I am inserting the verified vehicle record for login. वेरीफाइड व्हीकल का रिकॉर्ड सेंड करने के बाद डैशबोर्ड पे आ गए। हेयर इन डैशबोर्ड इमरजेंसी ड्राइवर कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू फ़ोन कॉल और बाय सेंडिंग ईमेल। वो हमें कॉल कर सकता है बाय क्लिकिंग द इमेज आइकन ऑफ कॉल, और ही कैन सेंड अस अ ईमेल बाय क्लिकिंग अ ईमेल इमेज आइकन। तो ईमेल में जाने के बाद सब्जेक्ट मैसेज फिल करके जब सेंड करेगा तो हमारी ऐप ट्रिगर कर जाएगी जीमेल के अंदर। सारा हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, और यहाँ से जो हमारा इमरजेंसी व्हीकल का ड्राइवर है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकेगा मेल सेंड करके। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जिसमें यूज़र अपनी लोकेशन ऑन कर देगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर तो उसको अपनी लोकेशन शो होगी पेज पे तो ठीक, अदरवाइज़ वो पहले गेट लोकेशन का बटन दबाएगा, देन वो सेंड लोकेशन का बटन दबाएगा, और सेंड लोकेशन का बटन ट्रिगर करने के बाद हर 1 मिनट के बाद उसकी अपडेटेड लोकेशन हमें हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगी। अब मैंने अपने घर की लोकेशन, मेरे जो घर की लोकेशन है वो हमें इस वेब पेज पे शो हो रही है। अब मैप के थ्रू भी जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको देख सकेगा और देन उसको टैकल कर सकेगा। मार्क के ऊपर क्लिक करने से उस इमरजेंसी का हमें व्हीकल नंबर भी शो हो जाएगा।